السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور دونوں نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا اچھا ذہن دیا تھا اور مقدموں کے فیصلے کرنے میں اپنے ذہن کے استعمال کا کمال فطرت نے شروع ہی سے دیکھا تھا۔ چنانچہ ان کے بچپن کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت، جو حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے ابو ہیں۔ حضرت تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جوانی کو پہنچے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ قرآن شریف میں نمل 16 میں ذکر ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ اور پھر الانبیاء کے 69واں میں اس کا ترجمہ ہے، اور داؤد اور سلیمان ہر ایک کو ہم نے حکومت دی اور علم نبوت دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کچھ خصوصیتیں اور امتیاز باتوں سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو ان کی مبارک زندگی کی خاص باتیں بنیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ نمل 16 میں، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا کہ لوگو، ہم نے پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بھی بات کرتے تھے، ان کو بھی بولی باتیں سب سمجھتے تھے وہ۔ قرآن کے اوپر کے بیان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہ تھی، بلکہ ایک ایسی نعمت تھی جس کو نشان معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بے شک پرندوں کی بولی بولنے والے انسان کی باتوں کی طرح سمجھتے تھے، اور یقیناً ان کا اس علم دنیاوی اصوات سے اوپر خالد قدرت کے قانون کے فیضان کا نتیجہ تھا، اور ایک ایسی بخشش اور دینے تھی کہ جس کو اللہ کا نشان کہنا چاہیے، مگر جو ان جیسی پاک ہستیوں کے لیے خاص ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر بھی قابو رکھتے تھے۔ قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا پر کنٹرول سے متعلق جتنا بیان کیا ہے وہ یہ ہے، ترجمہ انبیاء میں ہے 181، ترجمہ، اور قابو میں کر دیا سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو کہ ہم نے حکم سے زمین پر چلتی تھی، جس کو ہم نے برکت دی تھی اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ ترجمہ، اور قابو میں کر دیا ہم نے اس سلیمان کے لیے ہوا کو کہ چلتی ہے وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا چاہے۔ یہ سعد میں ہے 36، سورہ سعد میں 36 میں۔ اوپر کی آیتوں میں حضرت سلیمان کے اس شرف کے بارے میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں سادھا دیا گیا تھا۔ دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کی اس طرح تابع تھی کہ شدیدت تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نم اور دھیرے چلنے کی وجہ سے راحت پہنچانے والی ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کے تیز چلنے کا یہ حال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک
सहसवार घोड़सवार की लगातार 1 माह की तेज रफ्तार दूरी के जितना होता था, गोया सुलेमान का तख्त इंजन और मशीन जैसी ज़ाहिरी साधनों से कहीं आगे सिर्फ अल्लाह के हुक्म से एक बहुत तेज रफ्तार हवाई जहाज से भी तेज, मगर हल्केपन के साथ हवा के आंधे पर उड़ा चला जाता था। यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो सिंहासन था वो हवा में भी उड़ता था। इसलिए हवाओं को काबू में करने के वाक़या को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सच्ची नबूवत की खास और नुमायों बातों में से एक बात मानते हुए बिना किसी तावील के सही मान लिया जाए और बेकार की तफसील, तावील और इसराइली खुराफात में ना उलझा जाए। जिनों और हैवानों को काबू में रखना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह के दरबार में यह दुआ की। ये कुरान शरीफ में है, सूरह साद में, इसमें 35 में। तर्जुमा: ए परवरदिगार, मुझको बख्श दे और मेरे लिए ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी मुयस्सर ना हो, बेशक तू बहुत देने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया और एक ऐसी अजीब व गरीब हुकूमत अता की, ना इसमें पहले किसी को नसीब हुआ और ना इसके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। उनकी यह हुकूमत इंसानों के अलावा जिनों, हैवानों और हवाओं पर भी थी, और यह सब अल्लाह के हुक्म से उनके ताबे और फरमाबरदार अधीन थे। जिन अल्लाह के मखलूक हैं, उनकी जिक्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र में हो चुका है। बैतुल मुक़द्दस की तामीर। बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू जार गिफ़ारी अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई कि एक सहीह मुरफ़ूस हदीस से यह मतलब लिया गया है कि जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम को बुनियाद रखी और यह मक्का की आबादी की वजह बनी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस की आबादी वजूद में आई। फिर एक लंबे अरसे के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर नए सिरे से बसाया गया और जिन्नों के कब्जे में होने की वजह से बेनज़ीर और शानदार तामीर वजूद में आई। जिन कौम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए और भी तामीर की, जैसे कि कुरान में जिक्र किया गया है, अंबिया पारा अंबिया 62 में। तर्जुमा: और शैतानों सर्कस जिनों में से हमने काबू में कर दिए, वे जो उस सुलेमान के लिए समुद्रों में गोते मारते, यानी कीमती से कीमती समुद्री चीज़ें निकालते और इसके अलावा और बहुत से काम अंजाम देते, और हम उनके लिए निगरां और निगहबान थे। और कुरान से में एक और जिक्र है, साबा आयत साबा, इसमें 12 और 15 में। तर्जुमा: और जिन्नों में से वे थे जो उनके सामने खिदमत अंजाम देते थे उनके परवरदिगार के हुक्म से, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ टेढ़ापन दिखाए, हम उसको दोजख का अजाब चखाएंगे। वे उसके लिए बनाते थे जो कुछ वह चाहता था, किलों की तामीर, हथियार, तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जो हौजे की मानिद थे, और बड़े बड़े देंगे जो अपनी बड़ाई के वजह से एक जगह जमी रहे। ए आले दाऊद, शुक्रगुजारी के काम करो, और मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार हैं। नमन 17 आयत नमन इसका 17। तर्जुमा: और इकट्ठा किए गए सुलेमान के लिए हमने लश्कर जिनों में से, इंसानों में से, जानवरों में से, और वे दर्जाए दर्जा खड़े किए जाते हैं। साद 30 और 40। तर्जुमा:
और साधा दिए गए सुलेमान के लिए शैतान, सर्कस, हर किस्म के काम करने वाले, इमारत बनाने वाले, दरिया में गोते लगाने पर, और वे सर्कस जो जकड़े होते हैं जंजीरों में, यह हमारी बख्शिशें वो आता है, चाहे उसको बख्श दो या रोके रखो, तुम्हें उसकी पूछताछ नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की ये तामीरात जो जिन्नों के काबू में होने की वजह से वजूद में आई, आज तक लोगों की हैरत की वजह है कि ऐसे भारी भरकम पत्थर कहाँ से आए गए, जिस तरह लाए गए और किस तरह उसको बुलंदियों पर पहुंचाकर एक दूसरे से मिला दिया गया। तांबे के जखीरे। इन शानदार इमारतों की तामीर के सिलसिले में कुछ तफसीर लिखने वाले का कहना है कि अल्लाह ताला ज़रूरत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे को पिघला देता था। जबकि तांबे के चश्मों का भी जिक्र किया गया है, कुरान ने इस हकीकत की कोई तफसील नहीं बयान की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा। कुरान ने मलिका सबा के इस वाक़ये को मोजज़ा की तरह ऐसे जोड़ों में बयान किया है कि वाक़ये के बयान करने से जो हकीकत मकसद है, यानी याद दहानी, वो भी नुमाया रहे और वाक़ये के अहम और ज़रूरी हिस्से भी जिक्र में आ जाए, और साथ ही यह भी मालूम हो जाए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का इल्म दिए जाने का जो पहली आयतों में जिक्र है, उसकी गवाही के लिए यह दूसरा वाक़या है। यह वाक़या सूरह नमन की आयत 36 और 44 में बयान हुआ है, और मौलाना हिफरचुर्रहमान साहब सयोहरबी ने इस तरह बयान किया है। एक बार दरबारी सुलेमानी अपनी पूरी शान के साथ चल रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जायज़ा लिया कि हुदहुद को अपनी जगह पर गैरहाजिर पाया। इरशाद फरमाया, हुदहुद को मौजूद नहीं पाया। अगर वाक़या गैर हाजिर है तो उसकी यह बेवजह की गैर हाजिरी सख्त सज़ा के काबिल है, इसलिए या तो मैं उसको सख्त अजाब दूंगा या ज़िबा कर डालूंगा, या फिर वह अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह बताए। तब अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि हुदहुद हाजिर हो गया और हज़रत सुलेमान के पूछताछ करने पर कहने लगा कि मैं एक यकीनी इत्तिला लाया हूँ जिसकी आपको पहले से खबर नहीं। वह यह है कि यमन के इलाके सबा की एक मलिका रहती है, और अल्लाह ने सबको सब कुछ दे रखा है, और उसकी सल्तनत का तख्त अपनी खास खूबियों की वजह से बहुत ज़्यादा शानदार है। मलिका और उसकी कौम सूरज की पुजारी हैं, और शैतान ने उसको गुमराह कर रखा है, और वे कायनात के मालिक परवरदिगार आलम जो अकेला है, जिसका कोई शिर्क नहीं, की परस्तित नहीं करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, तेरे सच झूठ का इम्तिहान अभी हो जाएगा। तू अगर सच है तो मेरा यह खत ले जा और उसको उस तक पहुंचा दे, और इंतज़ार कर कि वे इसके बारे में क्या बातें करते हैं। मलिका की गोद में जब खत गिरा तो उसने पढ़ा और फिर अपने दरबारियों से कहने लगी कि अभी मेरे पास एक मुअज्जज़ा बहुत इज़्ज़तदार खत आया है, जिसमें यह लिखा है, यह खत सुलेमान की ओर से अल्लाह के नाम से शुरू है, जो बड़े मेहरबान है, रहमान वाला है। तुमको हम पर सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए, और तुम मेरे पास अल्लाह की फरमाबरदिगार मुस्लिम होकर आओ। मलिका सबा ने खत की इबारत पढ़कर कहा, ए
मेरे दरबारियों, तू जानते हो कि मैं अहम मामले में तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाती, इसलिए अब तुम मशवरा दो कि क्या करना चाहिए। दरबारियों ने कहा, जहाँ तक रौब खाने का ताल्लुक है तो इसके कतई तौर पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ज़बरदस्त ताकत और जंगी कुव्वत के मालिक हैं। रहा मशवरे का मामला तो फैसला आपके हाथ में है, जो मुनासिब हो उसके लिए हुक्म कीजिए। मलिका ने कहा, बेशक हम ताकत व शैतान वाले ज़रूर है, लेकिन हज़रत सुलेमान के मामले में हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले हमको उसकी ताकत व कुव्वत का अंदाज़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस अजीब तरीके से हम तक यह पैगाम पहुंचा, वह यह सबक देता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामले में सोच समझ कर कदम उठाना मुनासिब है। मेरा इरादा यह है कि कुछ कासिद रवाना करूं और वे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उम्दा और कीमती तोहफे ले जाएं। इस बहाने से वे उनकी शौकत और अजमत का अंदाज़ा लगा सकेंगे और यह भी मालूम हो जाएगा कि वह हमसे क्या चाहते हैं। अगर वह वाकई ज़बरदस्त कुव्वत का मालिक और शहंशाह है तो फिर उनसे हमारा लड़ना बेकार है, इसलिए कि ताकत व शैतान के मालिक बादशाहों का यह दस्तूर है कि जब वे किसी बस्ती में फतह करते हुए और गलबा हासिल करते हुए दाखिल होते हैं तो उस शहर को बर्बाद और इज्जतदार शहरियों को जलील व ख्वार करते हैं, इसलिए बेवजह बर्बादी मोल लेना क्या ज़रूरी है। जब मलिका सबा के कासिद तोहफे लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, तुमने और तुम्हारी मलिका ने मेरे पैगाम का मकसद गलत समझा। क्या चाहते हो कि इन तोहफों के जरिए जिनको तुम बहुत कीमती समझ कर खुश हो रहे हो, इसको फुसलाओ। हालांकि तुम देख रहे हो कि अल्लाह ताला ने मुझको जो कुछ दे रखा है उसके मुकाबले में तुम्हारा गलती समझ क्या जिनको तुम बहुत कीमती समझ कर खुश हो रहे तुमको फुसलाए। हालांकि तुम देख रहे हो कि अल्लाह ताला ने मुझको जो कुछ दे रखा है उसके मुकाबले में तुम्हारा यह कीमती दौलत बिल्कुल हेच है, इसलिए तुम अपने तोहफे वापस ले जाओ और अपनी मलिका से कहो कि अगर उसने मेरे पैगाम की तामीर नहीं की तो मैं ऐसी भारी भरकम फौज के साथ सबा वालों तक पहुंचूंगा कि तुम सबसे बचाव करने और मुकाबला करने में कामयाब ना होंगे और मैं तुमको जलील व रुस्वा करके शहर बदर कर दूंगा। कासिदों ने वापस जाकर मलिका सबा के सामने कुछ रिपोर्ट दी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शौकत व अजमत को जो कुछ देखा था वह पूरा सुनाया और बताया कि उसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्नों और हैवानों भी उसके फरमान के ताबे और साधे हुए हैं। मलिका सबा ने जब यह सुना तो तय रह लिया कि हज़रत सुलेमान से लड़ना अपनी हलाकत को दावत देना है, बेहतर यही है कि उसकी दावत मान ली जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुक्तूब गरामी खत में यह जुमला था, वातूनी मुस्लिमीन, अधीन बनकर मेरे पास आओ। चूँकि मलिका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दीन व मजहब को नहीं जानती थी, इसलिए उसने लफ्ज़ मुस्लिम को लफ्ज़ के मानी में समझते हुए यह समझा कि जाबिर बादशाहों की तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद भी यह है कि मैं उसकी फरमाबरदारी और शान हुकूमत का इतराफ़ करते हुए उसके मातहत को जाना कबूल कर लूँ। इसलिए उसने यह तय करके सफ़र करना शुरू कर दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना हो गई।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वाहिया के जरिए मालूम हो गया कि मलिका साबा खिदमत में हाजिर हो रही है। तब अपने अपने दरबारियों को खिताब करके फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मलिका साबा के यहाँ पहुँचने से पहले उसका शाही तख्त उठाकर यहाँ ले आया जाए। तुम में से कौन इस खिदमत को अंजाम दे सकता है? यह सुनकर एक देवपैकर जिन ने कहा कि आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं तख्त को ला सकता हूँ। मुझको यह ताकत हासिल है कि मैं उसके बेसबारा सामान के लिए आमीन हूँ, हरगिज खयानत नहीं करूँगा। देवपैकर जिन का यह दावा सुनकर हज़रत सुलेमान के वजीर ने कहा कि आँख झपकते ही उसको आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। हज़रत सुलेमान ने रुख फेर कर देखा तो मलिका साबा का तख्त मौजूद पाया। फरमाने लगे, यह मेरे परवरदिगार का फजल व करम है। वह मुझको आजमाता है कि मैं उसका शुक्रगुजार बनता हूँ या नाफरमान। और सच तो यह है कि जो आदमी उसका शुक्रगुजार बनता है वह असल में अपनी जात ही को नाफा पहुंचाता है, और जो नाफरमा करता है तो अल्लाह उसकी नाफरमानी से बेपरवाह और बेबुजुर्गता है, और उसका बवाल खुद नाफरमानी करने वालों ही पर पड़ता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त को शक्ल में कुछ तब्दीली कर दी जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि मलिका साबा यह देखकर सच्चाई का रास्ता पाती है या नहीं। कुछ दिनों के बाद मलिका साबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँच गई, और जब दरबार में हाजिर हुई तो उससे मालूम किया गया कि क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? अक्लमंद मलिका ने जवाब दिया, ऐसा मालूम होता है मानो वही है। यानी तख्त की बनावट और मजमूई हैसियत तो यही बता रही है कि यह मेरा ही तख्त है, और थोड़ी सी बनावट में तब्दीली इस यकीन में शक पैदा कर रही है, इसलिए यह भी नहीं कह सकती कि यकीनन मेरा ही तख्त है। मलिका साबा ने साथ ही यह भी कहा, मुझको आपकी बेमिसाली ताकत व कुव्वत का पहले से इल्म हो चुका है, इसलिए इताअतगुजार और फरमाबरदार बनकर खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और अब तख्त का यह हैरत में डाल देने वाला मामला तो आपकी बेमिसाल ताकत का ताज़ा मुजाहिर है, और हमारी इताअत और झुकाव के लिए एक कोड़ा। इसलिए हम फिर एक बार आपकी खिदमत में वफादारी और फरमाबरदारी जाहिर करते हैं। मलिका ने यकीन कर लिया कि कुन्नन मुस्लिमीन, हम फरमाबरदार हैं, कहकर हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैमान की तामील कर दी और उस मकसद को पूरा कर दिया, और मलिका के शिर्क भरी जिंदगी और सूरज परस्त पैगाम की हकीकत समझ सके और हिदायत का रास्ता मिल सके। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मकसद जाहिर करने के लिए दूसरा दिलचस्प तरीका इख्तियार किया, और उसकी तेजी और जहानत को भड़काया। वह यह कि उन्होंने जिन्नों की मदद से एक शानदार शीश महल तैयार करवाया था, जो आबगीने की चमक, महल की ऊंचाई और अनोखी कारीगरी के लिहाज से बेनज़ीर था, और इसमें दाखिल होने के लिए सामने जो सेहन पड़ा था उसमें बहुत बड़ा हौज खुदवाकर पानी से भर दिया था, और शफाफ आबगीनों और बिल्लौर के टुकड़ों से ऐसे नफीस फर्श बनाया गया था कि देखने वाले की निगाहें धोखा खाकर यह यकीन कर लेती थी कि सेहन में साफ शफाफ पानी बह रहा है। मलिका साबा से कहा गया कि शाही महल में क़याम करें। मलिका महल के सामने पहुंची तो
शफाफ पानी बहता हुआ पाया। यह देखकर मलिका ने पानी में उतरने के लिए कपड़ों को पुंडलियों से ऊपर उठाया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी ज़रूरत नहीं, यह पानी नहीं है, सारे का सारा महल और उसका खूबसूरत आंगन चमकते हाँ, आप गिने कहाँ का है। मलिका की तेजी और सूझबूझ पर यह कड़ी चोट थी, जिसने सूरत हाल समझने के लिए उसकी अक्ली ताकत को जगा दिया और उसने अब समझा कि इस वक्त तक यह तो कुछ होता रहा है, एक ज़बरदस्त बादशाह की काहिराना ताकतों का मुजाहिरात नहीं है, बल्कि मकसद मुझे यह बता देना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बेनज़ीर ताकत और मोजज़े की यह शान किसी ऐसी हस्ती की दी हुई है जो चांद सूरज बल्कि कुल कायनात का अकेला मालिक है। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुझसे अपनी ताबेदारी और फरमाबरदारी को मांग नहीं कर रहे, बल्कि उस अकेली जात की इताअत और फरमाबरदारी की दावत देना उनका मकसद है। मलिका के दिमाग में यह ख्याल आना था कि उसने फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्मिंदा और नामीद इंसान की तरह अल्लाह के दरबार में यह इकरार किया, पालनहार आज तक अल्लाह के अलावा की परस्तिश करके मैंने अपनी नफ्स पर बड़ा जुल्म किया। अगर अब मैं भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ होकर सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो तमाम कायनात का परवरदिगार है, और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम वातूनी मुस्लिमीन की हकीकत मुराद तक पहुँच कर उसने दीन इस्लाम इख्तियार कर लिया। सबा की हकीकत। कहतानी नस्ल की एक मशहूर शान सबा है। सबा अपने कबीले की बुनियादी डालने वाला था। यह अरब तारीख के माहिरों और नई तारीख के माहिरों के तहकीक है और नाम उमर या अबद शम्स था। यह आदमी बहुत बहादुर और हिम्मत वाला इंसान था। उसने सबा हुकूमत की बुनियाद डाली। सबा की तरक्की का ज़माना हकीकत करने वाले के नज़दीक लगभग 1100 ईसा पूर्व समझा जाता है। सबा की हुकूमत का असल मरकज़ अरब के दक्षिणी हिस्से यमन के पूर्वी इलाके में था और राजधानी का नाम अमारिख था। इसी को शहर सबा भी कहते थे। इसकी सरहदें हजरत मौत तक फैल गई थी और दूसरी तरफ अफ्रीका तक भी इसका असर पहुंच चुका था। अंग्रेजी भाषा में इसको सेबा कहा जाता है। कुरान ने इस वाक़ये में मलिका का नाम नहीं बताया, मगर यहूदियों के इस्राएली दस्तानों में इसका नाम बिलकिस बताया गया है। हुदहुद क्या है? कुरान ने बहुत साफ लफ्ज़ों में बयान किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कासिद हुदहुद परिंदा यानी पक्षी था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुतालिक परिंदों की बात समझने जैसे मोजज़े की रोशनी में हुदहुद के सिलसिले की बातचीत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। सबा की मलिका का तख्त। मलिका सबा के तख्त की तारीफ हुदहुद की जुबानी हो चुकी है और इस सिलसिले में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा भी कुरान में जिक्र किया गया है। इस सिलसिले में तावीलों की बहस बेकार की बात मालूम होती है। मलिका सबा का इस्लाम कबूल कर लेना। मलिका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगम्बरान जाह व जलाल को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस मुकम्मल वाक़या में हजरत सुलेमान की यही एक गरज थी जिसे उन्होंने अपने सबसे पहले ख़त में जाहिर कर दिया था, मगर मलिका उस
वक्त इस जगह को ना पार कर सकी। मलिका साबा का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ निकाह। कुरान में सही हदीस में नफ़ी या इस बात दोनों हैसियतों से उनके बारे में जिक्र नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की